Hello everyone. So today let's start with the mock test of modern history, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा. आप भी कर सकते हैं और अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट regarding the Muslim League. So the League Constitution was formed in Karachi in 1907. Separate electorate for Muslim was demanded in the Amritsar session of League 1908. Okay. And the name All India Muslim League was proposed by Syed Ahmad Khan. ठीक है, तो ये वाला लगाते हैं. Next question. After the Battle of Plassey, Dash was made the Nawab of the Bengal. Mir Zafar. Next question. Dayanand Saraswati was the founder of which of the following missions? दयानंद सरस्वती है हमारे आर्य समाज के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is regarded as a mother of Indian Revolution? So मैडम कामा. ठीक है, हाँ यही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 was signed between महात्मा गांधी and जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक and मोहम्मद अली जिन्ना of 1916. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian mass movement began with the famous Dandi March? Dandi March, civil disobedience movement. Next question. In which Anglo-Mysore war and in which year was Tipu Sultan killed? Fourth. 1799 होगा या 1805 होगा? चलो इसको लगाते हैं. Fourth 1799. ठीक है. Next question. The Gandhi Irwin Pact was associated in which of the following movements of India? गांधी अर्विन पैक्ट कब हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में या क्विट इंडिया मूवमेंट में? ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लगाते हैं. ठीक है. फिर हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? एमजी रनाडे, महात्मा जी, गोपाल कृष्ण गोखले और चित्तरंजन दास. यही होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया? हाँ, यूसुफ मेहर अली ने दिया था क्विट इंडिया स्लोगन. In which of the following sessions of the Indian National Congress did George Yule become the president? In 1888. कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और आई थिंक इलाहाबाद होना चाहिए. मद्रास, इलाहाबाद. ठीक है, ठीक है, लगाते हैं, बाद में देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ इन इंडिया to improve labor conditions was introduced under the viceroyship of. First Factory Act, Lord Ripon. Next question. Who is called the father of civil services in British India? Lord Cornwallis. Okay, next question. Which Indian nationalist movement is also known as the August movement? Quit India movement. नहीं, हाँ, Quit India movement. Next question. Which of the following introduced a measure of provincial autonomy? Okay, so Government of India Act 1935 लगाते हैं इसका. ठीक है, देखेंगे. Next question. Who among the following was one of the founders of Hindustan Republic Association? Ram Prasad Bismil. Next question. Who led the Santhal uprising? I think ये होना चाहिए. चलो ठीक है, ये लगाते हैं. What was the capital of the French colony in India? ये होगा Pondicherry. Next question. Who introduced the dual government system? ये Robert Clive ही है इसका. तो next question. Who founded the Anglo-Vedic College? आत्माराम पांडुरंग ने लगा या दयानंद सरस्वती? चलो आत्माराम पांडुरंग लगाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सबमिट. यस, सबमिट द टेस्ट. सबमिट. Okay, so let's see the solutions. First question. Which of the following statements is not correct regarding the Muslim League? तो ये वाला हमने किया था. The name All India Muslim League was proposed by Syed Ahmad Khan. ये गलत है. ठीक है. Okay. So the next question. After the Battle of Plassey, Dash was made as the Nawab of Bengal. Okay, यही है.
आपका मीर जाफर। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ब्रिटिश ऑफिसर ने ब्राइव किया था मीर जाफर को, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब आर्मी। सो ब्राइव वाज टू मेक मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद क्या हुआ, क्लाइव गोल वाज टू कॉन्कर द बंगाल इन ऑर्डर टू गेट द मनी। So इस process में Clive betrayed Mir Jafar during the Battle of Plassey and did not make him the Nawab, but in turn conquered Bengal and made Mir Jafar a traitor who betrayed their country. After the Battle of Plassey, Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. ठीक है, ओके, उनको पपेट नवाब बोला जाता था। इसके बाद क्या हुआ, ओके, आलमगीर सेकंड वाज अ मुगल एम्परर जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, एंड ही वाज अ सन ऑफ जहांगीर शाह। ठीक है, द बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो सिराजुद्दौला हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसको रॉबर्ट क्लाइव हेड कर रहे थे। सिराजुद्दौला जो थे ना वो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के, जिसको सक्सीड किया था अली वर्दी खान ने। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती ने किसके फाउंडर थे? दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के। तो ब्रह्म समाज के थे राजा राम मोहन रॉय, चिन्मया मिशन के थे चिन्मयानंद सरस्वती जी, और प्रार्थना समाज के थे आत्माराम पांडुरंग। So Dayanand Saraswati was a founded the Arya Samaj. Arya Samaj was founded in 1875. तो उन्होंने ट्रांसलेट किया वेदास को और 3 बुक्स लिखे। He gave the slogan "Go back to Vedas." ये स्लोगन दिया उन्होंने। दयानंद एंग्लो वैदिक schools were established on the philosophy and teachings. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who is regarded as a mother of Indian Revolution? Okay, Madam Kamo. So, Bhikaji Rustam Kamo was one of the eminent figures of Indian independence movement. उनको the mother of Indian Revolution बोलते थे। He was called to hoist the flag over the parliament in Germany. ठीक है, next question. The famous Lucknow Pact of 1960 किसके बीच साइन हुआ था? बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। तो लखनऊ पैक्ट जो कि एग्रीमेंट था बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एट अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द पार्टी, जो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ पैक्ट, और इसको दिसंबर 1916 में, जिसको साइन किया था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, इसका एग्रीमेंट ये हुआ था कि मुस्लिम लीग लीडर्स एग्री टू ज्वाइन द कांग्रेस कांग्रेस मूवमेंट डिमांडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian mass movement began with the famous Dandi March? ओके, तो डांडी मार्च हुआ था जब महात्मा गांधी जी ने की थी, तो कौन सा मूवमेंट शुरुआत हुई थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ओके, तो सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम और एंड रीच डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930। तो उन्होंने कवर किया था 240 माइल्स इन 24 डेज। गांधी जी ने वायलेट किया सॉइल लॉ बाय मेकिंग द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इट इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है इसको। लॉर्ड अर्विन उस टाइम वाइस रॉय थे जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था, एंड सरोजनी नायडू वाज वन अमंग द लीडर्स हु अकम्पनीड महात्मा गांधी। तो जब महात्मा गांधी दांडी मार्च के लिए गए थे तो सरोजनी नायडू भी थी साथ में। ठीक है, ओके, तो खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ था? अली ब्रदर्स थे उस खिलाफत मूवमेंट में, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट 1919 में स्टार्ट किया था, खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं। ऑल्सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी इस मूवमेंट को लेड किया था और सपोर्ट किया था भाई महात्मा गांधी और आईएनसी। ठीक है, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था। और अक्टूबर 7, 1919 को खिलाफत डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था 1 अगस्त 1920 बाय गांधी जी। ठीक है, मेन पर्पस सियादास जी ने रखा था, जो कि ये प्रोग्राम्स हुए थे नॉन कॉपरेशन में। सबसे पहले टाइटल्स और ऑनरी पोजीशन सरेंडर कर दिए सबने, रेजिग्नेशन कर दिया मेंबरशिप और लोकल बॉडीज से, फ्रॉम द लोकल बॉडीज, बॉयकॉट कर दिया इलेक्शंस को। उसके बाद गवर्नमेंट फंक्शंस को बॉयकॉट किया कोर्ट्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को, फॉरेन गुड्स को, नेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, प्राइवेट पंचायत, कोर्ट, स्वदेशी गुड्स एंड खादी। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट या अगस्त क्रांति बोलते हैं, और ये आईएनसी ने लॉन्च किया था, जिसको लेड कर रहे थे महात्मा गांधी ऑन 8 अगस्त 1942। क्विट इंडिया और भारत छोड़ो, गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान कब डेथ हुआ था, मतलब टीपू सुल्तान को कब मारा था? तो 4
एंग्लो मैसूर वॉर में, लेकिन 1799 है। ओके, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बीजली। आस्क्ड टीपू सुल्तान टू ब्रेक हिज टाइज विद फ्रेंच एंड एंटर इनटू द सब्सिडियरी अलायंस, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो गया और यहाँ पे टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। एंग्लो मैसूर वॉर्स देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 टू 69, सेकंड हुआ 1780 टू 84, थर्ड हुआ 1790 टू 92 और फोर्थ हुआ 1798 टू 99। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द गांधी अर्बन पैक्ट वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी अर्बन पैक्ट जो हुआ था, द एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड अर्विन ऑन 5th of March 1931। ये कब हुआ था? बिफोर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। ठीक है, इससे क्या हुआ? इस गांधी अर्विन पैक्ट से गांधी जी डिसकंटिन्यूड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, और उन्होंने ये भी एग्री किया कि अब वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? ओके, चित्तरंजन दास। सो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था in Orissa Division, Bengal Province, and the birth anniversary of Netaji, 23rd of January, is celebrated as Parakram Divas. उनको नेताजी बोला जाता था। And he passed the Indian Civil Services examination in 1920 in England. ठीक है, but left it on Gandhiji's call of the non-cooperation movement. He was the first elected INC president at the Haripura session in 1938 and Tripuri session in 1939. उन्होंने फाउंड किया था फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 एंड किसान सभा। उसके बाद महात्मा गांधी जी एड्रेस करते थे एज अ फादर ऑफ नेशन, और उन्होंने चार्ज भी लिया था ऑफ इंडियन आर्मी आज़ाद हिंद फौज की, जो कि सिंगापुर में थी। ठीक है, उसके बाद ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय विवेकानंद टीचिंग, और उनको वो स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। चित्तरंजन दास जी थे, वो पॉलिटिकल गुरु थे सुभाष चंद्र बोस जी के। उसके बाद क्या हुआ? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये उनका फेमस वर्ड था बाय नेताजी। एंड ऑल्सो फेमस स्लोगन ये था, दिल्ली चलो जय हिंद। उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है द इंडियन स्ट्रगल। ओके, चित्तरंजन दास जी को हम देश बंधु बोलते हैं पॉपुलरली, एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी 1923। सीआर दास जी ने आईएनसी को सर्व किया एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द अहमदाबाद सेशन 1921। उसके बाद उन्होंने एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ इन ब्रह्म समाज, इन्वॉल्व हुए इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और Das attended widespread fame when he was successfully able to defend Aurobindo Ghosh in the Alipur bomb case. Okay, M.G. Ranade, उनको हम फादर ऑफ रेनेसांस ऑफ वेस्टर्न इंडिया बोलते हैं। He was the mentor और पॉलिटिकल गुरु थे किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के और बाल गंगाधर तिलक के। उन्होंने ही M.G. रनाडे ने स्टैब्लिश किया था विडो मैरिज एसोसिएशन 1861 में, और फाउंड किया था पूना सार्वजनिक सभा। ओके, महात्मा गांधी जी को हम फादर ऑफ अवर नेशन, वो साउथ अफ्रीका से लौटकर आए थे ऑन 9th of January 1950 को, और सेलिब्रेट किया था एनआरआई डे। उसके बाद फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी जो था, फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी जो था वो चंपारण सत्याग्रह था 1917 का, और उसको हम फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद हंगर स्ट्राइक हुई गांधी जी इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। उसके बाद फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद प्रेसिडेंट बन गए आईएनसी के इन बेलगांव 1924। उसके बाद 1931 में गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। गांधी जी वाज assassinated on 30th January 1948 बाय नाथूराम गोडसे, जिसको मार्टर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। देन गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि फाउंडर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905, एंड पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोखले जी थे वो एमजी रनौटे थे। प्रेसिडेंट थे ऑफ बनारस सेशन ऑफ आईएनसी 1905 के प्रेसिडेंट हैं बनारस सेशन में, और गांधी जी रिगार्डेड हिम एज दिस पॉलिटिकल गुरु। तिलक कॉल्ड गोखले द डायमंड ऑफ इंडिया। ओके, तो तिलक उनको क्या बोलते थे? डायमंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया? यूसुफ मेहर अली। सो द की पॉइंट्स आर, जो आइकॉनिक क्विट इंडिया स्लोगन दिया है वाज कॉइन्ड बाय सोशलिस्ट कांग्रेस लीडर और लेसर नोन हीरो ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट यूसुफ मेहर अली इन 1942। उन्होंने he came up with the catchphrase Simon go back in protest against the all British Simon Commission। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फेमस कोट्स लिखे हैं। इन महात्मा गांधी जी ने दिया था डू और डाई, करो या मरो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था पूर्ण स्वराज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज।
ओके, लाला लाजपत राय ने दिया था अ ब्लो टू द स्टिक्स ऑन माई हेड विल प्रूव टू बी द नेल ऑफ द कास्केट ऑफ द ब्रिटिश रूल। देन सुभाष चंद्र जी बोस ने दिया था जय हिंद, दिल्ली चलो, देन तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन से सेशन था आईएफसी का जब जॉर्ज यूल को प्रेसिडेंट बनाया था? इलाहाबाद सेशन। तो जॉर्ज यूल जो थे प्रेसिडेंट थे आईएनसी के इन 1888, जो कि फोर्थ सेशन था इलाहाबाद। ही वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन, यही फर्स्ट नॉन इंडियन थे जो प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। सो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस देख लेते हैं कांग्रेस के। फर्स्ट सेशन हुआ बॉम्बे में, प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बैनर्जी और फॉर्मेशन हुआ आईएनसी का। सेकेंड सेशन हुआ कैलकाटा में, प्रेसिडेंट थे दादा भाई नायडू। थर्ड सेशन हुआ मद्रास में, प्रेसिडेंट थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। फोर्थ सेशन हुआ इलाहाबाद में, जिसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल और जो कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। देन कैलकाटा सेशन, देन बनारस एंड सो ऑन। ओके, 1978 कैलकाटा में जो प्रेसिडेंट थी वो एनी बेसेंट थी, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही है कांग्रेस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब हुआ था इंट्रोड्यूस? किसके वाइसरॉयशिप में? लॉर्ड रिपन। तो जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था 1881 में पास हुआ था। तो विलियम हंटर कमीशन अपॉइंट हो गया था 1882 में in order to review the progress of education. Ilbert Bill 1883 was passed and the age of entry in civil services was increased to 21 years. Next question. Father of civil services in India, British India, Lord Cornwallis. ठीक है, तो during the British Raj, Warren Hastings laid the foundation of the civil services. लेकिन चार्ल्स कॉर्नवालिस रिफॉर्म, मॉडर्नाइज्ड एंड रेशनलाइज्ड, इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें गवर्नर जनरल के टाइम के इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लॉर्ड बीजली के टाइम में इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, एंड लॉर्ड डलहौजी के टाइम का है रेलवे माइन्यूट ऑफ 1853, टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म्स, विडो रिमैरिज एक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम के इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian nationalist movement is also known as the August movement, Quit India movement? So क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं, जिसको कब लॉन्च किया था गांधी जी ने? 8 अगस्त 1942। कहाँ पर? एट ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे, जिसमें स्लोगन दिया था उन्होंने डू और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following introduced a measure of provincial autonomy? Okay, so Government of India Act 1939। तो मेजर प्रोविजंस जो थे 1939 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, वो ये था एस्टैब्लिश्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी को एबॉलिश किया गया एट प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, फेडरल कोर्ट इन 1937, इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, एंड ओके, सो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है एंड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was one of the founders of HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने पार्टिसिपेट किया था इन मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी और काकोरी कॉन्स्पिरेसी में। तो ही वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश 19th of December 1927। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लेड द संथल अपराइजिंग? ओके, गलत हो गया तो ये लगाते हैं, सिद्धू एंड कन्हू। ओके, तो ये रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी था एंड जमींदार बाय द संथल पीपल। सो द लीडर्स थे सिद्धू, कन्हू, चंद एंड भैरव। लोकेशन थी झारखंड और इस रिबेलियन को सप्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच कॉलोनी, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी? पौंडीचेरी थी कैपिटल। पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी कैपिटल थी फ्रेंच कॉलोनी की, एंड इसको हम इंडियाज लिटिल फ्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच लेड द सुप्रीमेसी in the year 1673 and the French East India Company set up a trading center at Pondicherry in 1674। ठीक है, और उस पौंडीचेरी को रिनेम कर दिया गया एट पुडुचेरी इन 2006। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर रहे हैं एंड कंपनीज आर्मी, ही लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी इन 1957। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को। क्वेश्चन।
Anglo-Vedic College को founded Dayanand Saraswati. Okay. So who founded the Anglo-Vedic College? Lala Hansraj जी. तो एंग्लो-वैदिक कॉलेज ऑफ स्कूल्स, जिनको हम दयानंद एंग्लो-वैदिक कॉलेज स्कूल्स बोलते हैं, इसको वर फाउंडेड इन 1886 एट लाहौर बाय द एफर्ट्स ऑफ महात्मा हंसराज. और कंफ्यूजन पॉइंट्स यही है कि इसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नहीं फाउंड किया था. इन द नेम एंड मेमोरी ऑफ दयानंद सरस्वती जी, लाला हंसराज इस्टेब्लिश. ओके, उनकी मेमोरी ने इस्टेब्लिश किया था लाला हंसराज ने, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने एंग्लो-वैदिक कॉलेज नहीं फाउंड किया था इन द लाहौर. ठीक है. The schools were run by the Dayanand Anglo-Vedic College Trust and Management Society, also known as the Dayanand Anglo-Vedic Education Society. ठीक है, तो ये ट्रस्ट चला रही थी उन स्कूल्स को. एंड इसमें 900 स्कूल्स थे, 75 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज थी. डीएवी मूवमेंट फाउंडेड इन 1886 बाय लाला हंसराज जी ने ही ये मूवमेंट चलाया था, जो कि फादर ऑफ डीएवी मूवमेंट भी बोले जाते हैं. एंड पिक्ड अप द मोमेंटम ड्यू टू द efforts of Mahatma Hansraj, Pandit Gurudatta Vidyarthi, and many other dedicated as a Arya Samaj activist. So that's all. मॉडर्न हिस्ट्री का मॉक टेस्ट आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.